Yeah, good evening, future CS. So let us start with ऐसे 530 that talks about audit sampling. ठीक है, तो हम जो ऑडिट करते हैं दैट इज ऑन अ सैंपल बेसिस. तो ऐसा नहीं होता. जैसे अब हमने पढ़ा था जब ऑडिट एविडेंस का जब हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर मींस इसी चैप्टर का पार्ट था ऐसे 500 जब हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा देर आर थ्री मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, राइट. यू कैन टेस्ट 100%, यू कैन टेस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है. यू कैन टेस्ट 100%, or you can select some specific items, or you can apply audit sampling. So these are the selection methods for the purpose of obtaining audit evidence. So you can think of selecting all the items. You can think of selecting some specific items, like all the high value items and all the items over a certain amount, or items to obtain some specific information. So you can think about selecting some specific items, then selecting all the items, and then you can also consider audit sampling to be one of the methods to collect the audit evidences, right? So now this SA 530 covers the audit sampling part. Okay, so it covers the audit sampling part. So audit sampling means it refers to the application of audit procedures. So जो मैं अब audit procedure करूंगा, that will be to the not the entire population, but it will be less. I will apply the audit procedure to less than 100% of the items within a population, such that all sampling units have an equal chance of selection. तो मैंने बोला audit sampling क्या होता है? It refers to the application of audit procedures. मैं audit procedures करूंगा, but this time I will not do audit procedures on the entire audit balance, entire account balance, but rather I will do it for less than 100% of the items, right? So SA 530 audits sampling says that it refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under audit, such that all sampling units have an equal chance of a selection. ठीक है, तो मैंने बोला audit sampling में I will apply the procedures, but to the less than 100%. I will not test the 100% of the population and will do it on a sample basis. So it refers to the application of audit procedures to less than 100% of the items within a population. So items are within the population, such that all sampling units have an equal chance of सिलेक्शन. तो मैंने बोला आप देखो, अब आप समझो, पहले पॉपुलेशन समझते हैं, ठीक है, देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू जनरल लेजर, ठीक है, रेवेन्यू जीएल. तो मैंने बोला मैंने राम को सामान बेचा 100, मैंने श्याम को सामान बेचा 200, एंड मैंने घनश्याम को सामान बेचा, ठीक है, घनश्याम. So it is 300. So what do you mean by the term population? What do you mean by the term population? Is the entire 600 transaction dump. So 600 के transaction dump में then you came to know that Ram has been sold goods worth ₹100, Sham was ₹200. So these are the items within the population. So audit sampling means the application. It means, so audit sampling की अगर आप definition पढ़ते हो, so audit sampling refers to the application of procedures to less than 100% of items within a population relevant under audit, such that all sampling units, that is all sampling units, मतलब राम भी select हो सकता है, श्याम भी select हो सकता है, घनश्याम भी select हो सकता है, ठीक है, that all sampling units, that is all the items in the population, have an equal chance of selection. So they have a equal chance of selection. So this is to ensure that I think this equal word is not right? Because there is something called as monetary unit sampling also. That is also one of the recognized method for audit sampling. I don't agree with this word equal at this point, because you can say that, yeah, you should give chance of selection to each and every sample, but it should not be necessarily equal. This I will come back when we touch upon the monetary unit sampling. ठीक है, तो मैंने बोला audit sampling, it refers to the application of audit procedures to less than 100% of the items within a population. So items means Ram, Sham, Ghanshyam. So these are the items within a population relevant under audit, such that all sampling units have an equal chance of selection. So this equal word is causing some disruptions, and it is saying that 100. So when we talk about, so let me just give you a hint here right away. I will give you the hint. Okay. So let's say if ₹100 is of Ram, 200 is of Sham, and 300 is of Ghanshyam, and let's say you have to pick two samples, then monetary unit sampling will do. So what it will create is they will create 300 lots for it.
200 lots. Lots means lotteries. You can think about it in a lottery way. So Ghanshyam, Ram has got 100 lotteries. Sham has got 200 lotteries. Ghanshyam has got 300 lotteries, right? So now if say, let's say you have to pick only two lotteries. Let's say it comes out, because considering Ghanshyam was available in 300 of the 300 of the slips, right? It is probable that Ghanshyam would come out, right? So this is known as monetary unit sampling, where you assign the weights, you assign the weights, you will assign the weight टू दी अमाउंट, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी 300 पर्चियां बना दोगे, शाम की आप 200 पर्चियां बना दोगे, एंड राम की आप सिर्फ 100 पर्चियां बनाओगे. सो इट डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. सो आई डोंट एग्री विद दिस. It's if you read through the essay 530, it never says equal chance of selection. Let me just open essay 530 for you, and let us just read the definition of audit sampling once, so that it's clear to you. ठीक है, एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग की एक बार डेफिनेशन को अपन लेट्स रीकैप. तो मैंने बोला इट्स द एप्लीकेशन, इट्स सो दिस इज एज पर essay 530, इट्स द एप्लीकेशन. सो अभी स्टडी मैथ में दिस equal chance of selection is something that is not actually bringing out the right picture. So what actually the definition written in the standard is this: the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevance, such that all sampling units have a chance of selection. So this is very, very important, that all sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions. So I am not saying that the RAM will not be included. RAM will not be included in the lots. He will be included, but the number of slips in that sample would be only 100. Whereas in case of Sham, it will be 200, and in case of Ghanshyam, it will be 300. So hope I am making sense to you. So audit procedures means the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevance. So it means audit sampling means it refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant to audit. That means the population should be relevant to audit. तो अभी हमने जब relevance and reliability वाला concept पढ़ा था, तो population relevant to audit में हमने एक बड़ा अच्छा सा example पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था अगर हमें trade payable का understatement देखना है, अगर ट्रेड पेबल को देखना है कि क्या वो अंडरस्टेटेड है, तो हमारे को व्हाट इज द रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस हियर इज द सब्सिक्वेंट पेमेंट रिसिप्ट्स एंड नॉट द एपी एजिंग रिपोर्ट. तो अगर आपको एग्जांपल याद हो तो the example that we have learned, let me just show you. So it was related to the understatement of payables. Perfect. This understatement, ठीक है, परफेक्ट. दिस वाज द एग्जांपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगर आपका पर्पस क्या है कि आपको ये देखना है कि ट्रेड पेबल्स कम रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो अगर आप एपी एजिंग रिपोर्ट लिखोगे तो उससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि भाई एपी एजिंग रिपोर्ट में तो वो आइटम्स आ रहे हैं जो रिकॉर्डेड है. अगर आपको ये देखना है कोई अनरिकॉर्डेड अमाउंट है, कोई अंडर रिकॉर्डेड अमाउंट है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई सब्सिक्वेंटली पेमेंट क्या हुई है, कितने अनप्रोसेस्ड इनवॉइसेस कंपनी के पास पड़े थे. ठीक है, तो दिस इज द पॉपुलेशन रेलेवेंट टू ऑडिट. तो मैंने बोला ऑडिट सैम्पलिंग मींस द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% of the population that is relevant to the audit. तो audit sampling की definition अब अपन वापस चलते हैं. audit sampling की definition पे अपन वापस चलते हैं as per essay 530. So this is something audit sampling. One second, essay 530. Perfect. We are here. So audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units have a equal chance of selection. So this equal chance, so you consider it to be such that all sampling units have a chance of selection. तो मैंने बोला ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में क्या बात करता है. इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स within a population that is relevant under audit, such that all sampling units have a chance of selection. This is to ensure that the item selected represent the entire population. This is to ensure that the item which has been selected represents the entire population, which enables the auditor to draw conclusions and express his opinion based on a predetermined objective.
अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर ऐसे 530। तो एक काम करते हैं, अभी हमने ऐसे 530 में पूरा समझ लिया। सो हमने ऐसे 530 खोला और हमने समझा द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ items within a population. So the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevance, such that all sampling units have a chance of selection, in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population. मुझे conclusion किस पे देना है? Entire population पे. I don't have to give conclusion on the sample, right? So I have to subject it to, I have to subject all the samples to give them a chance of selection. ठीक है, I have to give them a chance of selection. So audit sampling means, it means the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevance, such that all sampling units have a chance of selection, in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population. So I have to draw the conclusion on the entire population, but I am doing only samples. So this is to ensure that the items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw conclusions and express his opinion based on a predetermined objective. So what is the objective of SA 530? SA 530 का क्या ऑब्जेक्टिव है? लेट्स रीड इट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 530 को अपन समझते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 530, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग, जब मैं ऑडिट सैम्पलिंग को यूज कर रहा हूँ, इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। तो इसका पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 530 इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस, ताकि मुझे रीजनेबल बेसिस मिले, ऑडिटर को रीजनेबल बेसिस मिल जाए to draw conclusions about the population from which the sample is selected. तो मेरे को what is the objective of SA 530? SA 530 क्या बोलता है? The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor, ताकि मुझे reasonable basis मिल जाए to draw conclusions about the population from which the sample has been selected. तो मैंने बोला मुझे एक reasonable basis मिल जाए, मुझे एक reasonable basis मिल जाए, ताकि मैं सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊं। तो सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड। तो अपन वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग, जब मैं ऑडिट सैम्पलिंग यूज कर रहा हूँ, इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर to draw conclusions about the population from which the sample is selected. तो मैंने बोला SA 530 दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। ये क्या होता है ऑडिट सैम्पलिंग? इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन विद इन अ पॉपुलेशन विच इज रेलेवेंट टू द ऑडिट। ठीक है, रेलेवेंट टू द ऑडिट को हमने लिंक कर लिया, करेक्ट, सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज टू एंश्योर, ये इसलिए जरूरी है that the selected item represent the entire population, which enable the auditor to draw conclusion and express his opinion based on a predetermined objective. So what is my objective? So when using audit sampling, it should provide me a reasonable basis. So it should provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population from which the sample is selected, ताकि I can draw a conclusion about the population from which the sample has been selected. SA 530 becomes applicable when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. तो ऐसे 530 आपके ऊपर तब लगता है जब आपने ऑडिट सैम्पलिंग को यूज करना चाहा। तो आपके पास तीन ऑप्शन थे। यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स लाइक हाई वैल्यू आइटम्स, यू कैन से आइटम्स अबव अ सर्टेन अमाउंट, करेक्ट। तो आप वो वाला मेथड भी लगा सकते हो। You can select entire 100% of the population, or you can think about doing the audit sampling. So SA 530 is applicable only when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. तो जब मैंने audit sampling को decide कर लिया कि भाई मैं इसी को use करूंगा, तो then you can say this audit sampling का standard is applicable. तो selecting specific items, selecting all items, या फिर audit sampling, तो तीन जो ऑप्शन थे उसमें से जब आप तीसरा ऑप्शन चूज कर लेते हो, तो फिर आपका ये वाला स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है, दैट इज SA 530. तो होप द स्कोप
and objective. And SA 530 becomes applicable when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. So this standard deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling. तो दो टाइप की सैम्पलिंग मेथडोलॉजी हो सकती है. One is statistical sampling, second one is non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample. तो मैंने बोला when I am designing and selecting the audit sample, तो ये standard it deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling. मैं दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ. अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको. What do you mean by the term statistical sampling? What do you mean by the term non-statistical sampling? है ना. तो this standard deals with the auditor's use of the statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing test of control and test of detail, and evaluating the results from sample. तो ये तीन चीजों में अप्लाई होता है. एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ से पढ़ते हैं. ठीक है, ये अपन को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, तो ये स्कोप है, ये स्कोप है, ये जो हमने ये स्कोप पैराग्राफ है. ठीक है, और ऐसे 530 तभी एप्लीकेबल होता है जब आपने ऑडिट सैम्पलिंग को यूज किया है इन परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स. तो ऐसे 530 क्या बोलता है ऑडिट सैम्पलिंग? ये बड़ा सिंपल सी बात बोलता है. इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए? दैट शुड बी रेलेवेंट टू ऑडिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी रेलेवेंट अंडर द ऑडिट such that all sampling units have a chance of selection. ठीक है, such that all sampling units have a chance of selection. अभी ये इसलिए चाहिए ताकि this is to ensure that the item selected represents the entire population, which enables the auditor to draw conclusions and express his opinion based on a predetermined objective. What is the objective as per SA 530? What is the objective as per SA 530? तो मैंने बोला the objective of the auditor as per SA 530 when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor, is to provide him a reasonable basis to draw conclusions on the population from which the sample is selected. मुझे opinion देना है on the entire population, but I'm testing only the sample. So the objective of SA 530 is to basically when the auditor, when using the audit sampling, it should provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population from which the sample is selected. ऐसे 530 तभी लगता है जब ऑडिटर ने डिसाइड किया दैट आई हैव टू यूज द सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है, तो ये हमने पूरा समझ लिया है. ऐसे 530 हमने समझ लिया. देन वी लर्नड अबाउट द स्कोप ऑफ द SA 530. ठीक है, तो स्कोप पैराग्राफ में आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूँ. तो दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाइज व्हेन द ऑडिटर हैज डिसाइडेड टू यूज ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स. तो मैंने बोला जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ऑडिट सैम्पलिंग ही यूज करनी है इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, then this standard 530 audit sampling becomes applicable. It deals with the auditor's use of the statistical. मैं दो methods use कर सकता हूँ, statistical and non-statistical method. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैंने बोला आप सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं पहले एक बार वहां चलते हैं, फिर देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड, व्हाट इज द नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड. इट डील्स विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल and the non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample. So when I am designing and selecting, ठीक है, तो when I am designing and selecting the audit sample, performing test of control. तो जब मैं sample को select कर रहा हूँ, when designing and selecting the audit sample, performing test of control and test of details, and evaluating the results from the sample. ये तीन basically this standard deals with the auditor's use of the statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, when performing the test of control and test of details, and then evaluating the results from the sample. तो आपने basically when designing and selecting the audit sample तो SA 530 लगता है. when performing test of control then test of details, उस sample के ऊपर जब आप test of control या test of detail कर रहे हो तो then also this SA 530 is applicable. And then evaluating the results from that sample, that is also covered within the scope of SA 530. मैंने बोला बहुत simple है. When the auditor has decided to use either a statistical method of sampling or a non-statistical method of sampling, and it has to design and select the audit sample,
or he has to perform test of control and test of details over those samples, and either he has to evaluate the results from those samples, then this SA 530 is applicable. तो एक काम करते हैं, मैंने बोला ये स्टैंडर्ड तभी लगता है जब आप ऑडिट सैम्पलिंग को यूज करना चाहते हो फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ द ऑडिट एविडेंस. सो दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाइज when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. It deals with the auditor's use of the statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample. तो जब मैं design and select कर रहा हूँ audit sample को, when I am performing test of controls and test of detail, and when I am evaluating the results from the sample, then also this standard is applicable. तो मैंने बोला जब मैंने design and select किया sample तब भी ऐसे 530 लगा, जब मैंने उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म किया तब भी ऐसे 530 लग रहा है, एंड देन इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम दोस सैंपल इज आल्सो कवर्ड विद इन दिस स्टैंडर्ड. तो दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये हमें पूरा स्कोप क्लियर हो गया. ठीक है, फिर अब अपन चलते हैं. तो हमने मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग पढ़ा, जहाँ पे हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन, 100% विद इन अ पॉपुलेशन दैट इज रेलेवेंट टू द ऑडिट सच दैट all sampling units have a chunk of selection. To अब ये हम इसलिए करते हैं to ensure that the items selected represent the entire population, and it enables the auditor to draw a conclusion and express his opinion based on a predetermined objective. Objective of the auditor as per SA 530 is to use audit sample to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. This standard deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting. Very important words, जब मैं design कर रहा हूँ and then मैं select कर रहा हूँ the audit sample, या फिर मैं perform कर रहा हूँ test of controls and test of details on that sample, and when I am evaluating the results from that sample. So this is the scope of SA 530. अभी मैंने बोला SA 500 और SA 530 के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, तो वो तो हमें दिख ही रही है. SA 500 बताता है 3 मेथड्स जिसके बेसिस पे आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो. या तो आप 100% करो, या आप करो 100% करो, या यू सेलेक्ट दी स्पेसिफिक आइटम्स, या फिर यू डू इट ऑन SA, you do it on sampling basis. So there is an interrelationship between SA 500 and SA 530. SA 500 lays down the means available to the auditor for selecting the items for testing. हमने 3 मेथड पढ़े. या तो आप टेस्ट करो 100% of the items, or you select some specific item, or you do some audit sampling. One of those is audit sampling. Correct. Out of those 3, one of them is audit sampling. Hence SA 530 complements, मतलब SA 530 is an addition to SA 500. SA 500 में हमने पहली बार कॉन्सेप्ट सुना द नेम एज ऑडिट सैम्पलिंग, और उसको हम SA 530 में पूरा डिटेल में कवर करते हैं. उसको हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं. तो काम करते हैं, पहले मैं आपको स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड से एक बार मिलवा देता हूँ, जस्ट इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. वी विल टच अपॉन इट इन अ लेटर पार्ट, बट या आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. तो अगर आप देखो सैम्पलिंग के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. रैंडम सैम्पलिंग, मतलब आपने एक्सेल में एक रैंडम फंक्शन रन किया, तो उसने जो भी नंबर का आइटम दिया, तो उसने बोलो लेट्स सपोज कुछ भी सेलेक्ट किया एक एक्सेल फंक्शनैलिटी ने, तो आपने वो सैंपल चेक किया. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि आपने डिसाइड किया, आपने पहले एक सैम्पलिंग इंटरवल निकाला. अभी मैं समझाता हूँ सैम्पलिंग इंटरवल क्या होता है. मान लो कि आपने डिसाइड किया, फॉर इजीनेस लेट्स कंसिडर कि आपने डिसाइड किया कि आप हर 50 में से जो 20वें नंबर का आइटम होगा वो आप उसे पिक करोगे. ठीक है, जो 20वें नंबर का आइटम है आप उसे पिक करोगे. तो आपने पहले 50 में से 20 उठाया, फिर अगले 50 में से अगला 20 उठाया, फिर अगले 50 में से आपने अगला 20 उठाया. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. देन मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग को अभी हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि हम भाई उसे वेट्स असाइन करेंगे इक्वल टू द अमाउंट. ठीक है, जैसे उसकी 300 पर्चियां होगी, 300 में से भी कोई भी उठ सकता है, तो देयर इज अ लार्जर चांसेस दैट द लार्जर वैल्यू ऑफ द आइटम विल बी पिक्ड अप. ठीक है, हैफेजार्ड सैम्पलिंग मींस मैं बेसिकली अपनी इच्छा से कोई भी सैंपल पिक कर रहा हूं. तो दिस इज अ नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड. ऊपर वाले जो तीनों थे दैट वाज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, these were the statistical method to the sampling. But haphazard sampling and block sampling means क्या होता है, मैंने बोला कोई भी, मैंने एक नंबर शुरू किया और मैंने बोला इसके मैं अगले 50 ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे चेक करूंगा. फिर मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, मैंने बोला इसके 50 के 50 पूरे ब्लॉक चेक करूंगा. तो हो सकता है कि भाई वो ब्लॉक के अंदर
जो मेन ट्रांजेक्शन है शायद वो छूट जाए। तो ब्लॉक सैम्पलिंग एंड हैफाजार्ड सैम्पलिंग इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू सैम्पलिंग। तो मैंने बोला, मैंने आपसे आपके साथ 2 मेथड किए डिस्कस जो कि नॉन स्टैटिस्टिकल थे, 3 मेथड डिस्कस किए जो आपके मैंने बोला स्टैटिस्टिकल मेथड थे। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपन ऊपर जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था विद द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, करेक्ट। तो हमने स्कोप पढ़ लिया, स्कोप समझ आ गया, हमें मीनिंग समझ आ गया। अब हम समझते हैं पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन को समझते हैं, पॉपुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला पॉपुलेशन में जैसे राम श्याम घनश्याम, तो 3 डेटा सेट थे। इट रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सेलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो ऑडिटर की इच्छा है टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल एंड द टेस्टिंग ऑफ द सैंपल। तो ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ द ऑडिटर एज पर एसए 530? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर using the audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population from which the sample is selected। तो मुझे conclusion draw करना है population के ऊपर and I've selected a sample, so it refers to the entire set of data, very important point, it refers to the entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw the conclusion। अभी मैंने बोला population should have these 3 characteristics. One is appropriateness, second one is completeness, third one is reliability। ठीक है, फर्स्ट वन इज appropriateness। appropriateness means relevant होनी चाहिए information मतलब the population should be relevant। ठीक है, the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn is appropriate for the specific audit objective। Appropriate means the population from which the samples are drawn shall be relevant for the specific objective under audit। So the population should be relevant। तो मैंने बोला relevant, सेम एग्जांपल, अगर आप अंडर स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड पेबल को देखना चाहते हो तो आपके लिए एपी एजिंग रिपोर्ट इज नॉट अ relevant audit evidence। So what are the characteristics of the population so that you can consider it to be adequate। सो अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, टू 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, रेलेवेंट अंडर द ऑडिट। तो अभी आपको रेलेवेंट पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने बोला इट शुड बी अप्रोप्रिएट। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन? इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड बी रिलायबल। ठीक है, मैंने बोला इट शुड बी अप्रोप्रिएट मींस इट शुड बी रेलेवेंट। ठीक है, complete means population should be complete, it should not omit any transaction। ठीक है, and then it should be reliable, very very important। it reliable includes 2 things, that is accuracy of that report and you can say accuracy and the source from which that information, that population has been obtained। so reliability covers two aspects। ठीक है, तो एक काम करते हैं, appropriateness covers relevant। रेलेवेंट क्या हुआ, रेलेवेंट अपन ने समझा अकाउंट्स पेबल में रेलेवेंट क्या है। अकाउंट्स पेबल में रेलेवेंट है भाई साहब कि आप एपीएजिंग रिपोर्ट लोगे तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि उसमें तो वो रिकॉर्डेड ही नहीं है ना लाइबिलिटी, आपको सर्च करना कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं है। तो इसके लिए क्या रेलेवेंट है कि भाई जो ईयर एंड के बाद में क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है, आप उसमें से देखो कि कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं है जिसका खर्चा शायद मार्च के महीने में बुक होना चाहिए था। तो you have to consider the relevance of the population, okay, from which the sample needs to be picked up। then you need to ensure that the population from which the sample is picked up is complete and the population should be reliable, that is accurate, and it should be from a you can say reliable source। so appropriateness means the auditor will need to determine that the population, ठीक है ना, मैंने बोला the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn, जिससे मैंने sample निकाला है, is appropriate for the specific audit objective। That population from which the sample is drawn is appropriate to the audit objective। audit objective क्या था मेरा था audit objective was to test understatement of payables। so I need to determine that the population from which the sample is being drawn up is appropriate for the objective, is appropriate for the specific audit objective। Appropriate means population from which the samples are drawn shall be relevant for the specific objective। so मैंने बोला appropriateness means the population जिससे samples निकल रहे हैं वो relevant होनी चाहिए for the specific objective under audit। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेबल्स को चेक करना। तो क्या मेरे को एपी एजिंग रिपोर्ट से चेक करना सही होता, तो जवाब है नहीं। तो appropriateness means population जिस from which the samples are drawn shall be relevant for the specific objectives under audit। it should be relevant to the specific objectives of the audit।
अब फिर दूसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस। तो मैंने बोला कंप्लीटनेस, अभी मैंने बोला the population also needs to be complete, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether a control activity is operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all relevant items. All relevant items, that is all activities that form part of that relevant internal control throughout the entire period. तो मान लेते हैं BRS मंथली बेसिस पे प्रिपेयर होती है, और मैंने बोला कंपनी के 5 बैंक अकाउंट्स है और हर एक बैंक अकाउंट की BRS प्रिपेयर होती है। तो 5 × 12 मतलब मंथ with the name and number of the account, there will be 60 items in the population. So your population should be complete from which you are drawing out the sample. मैंने बोला आप 5 अकाउंट के लिए BRS करते हो ऑन अ मंथली बेसिस, सो द टोटल आइटम्स इन द पॉपुलेशन शुड बी 12 × 5, that is 60 items. So the population also needs to be complete. That, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether a control activity is operated effectively during the financial reporting period, तो मुझे कंफर्ट क्या लेना है कि भाई पूरे साल ये कंट्रोल एक्टिविटी हुई है, और मुझे ये किसके बेसिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। आई कैन डू the audit for 60 samples, ठीक है। the population needs to include all relevant items, population needs to include all relevant items, मतलब उसमें ये भी होना चाहिए किस मंथ क्या अकाउंट नंबर है, ठीक है, जिसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, दैट इज ऑल द एक्टिविटीज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ दैट रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। तो वो उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। देन कम्स द रिलायबिलिटी। फर्स्ट वन वाज अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस मैंने क्या समझा, मैंने बोला जिससे 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 आप जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल पिक करोगे वो पॉपुलेशन रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिलायबिलिटी का मीन्स क्या है कि दैट पॉपुलेशन कैन बी लिंक्ड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अंडर द ऑडिट, ठीक है। सो अप्रोप्रिएटनेस मीन्स पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल्स आर ड्रॉन shall be relevant for the specific objectives under the audit. Completeness means the population should be complete. अगर आप मान लो कंट्रोल एक्टिविटी को देख रहे हो तो आपने देखा भाई हाँ पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कवर्स 2 थिंग्स। वन इज एक्यूरेसी, नंबर्स उसके अंदर सही होने चाहिए। मान लो राम 100 रुपए, श्याम 200 रुपए, घनश्याम 300 रुपए, ये नंबर सही होने चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, जो कि GL से टैली होने चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए एक्यूरेसी, दूसरा है सोर्स जिससे आपको ये रिपोर्ट, जिससे आपको ये पॉपुलेशन मिली है। सो व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट सैम्पलिंग, द ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate। तो हमें पता है ये तो हमने ऑलरेडी पता है कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हो, चाहे वो ऑडिट सैम्पलिंग के लिए ही हो, है ना, अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज परफॉर्म, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि दैट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। कंप्लीटनेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक्यूरेसी के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। If the population is not reliable with respect to accuracy and source, the sample drawn will definitely not be relevant for the specific audit objective. तो मैंने बोला reliability means 2 things, that is accuracy and the source. So if the population is not reliable with respect to the accuracy and source, the sample drawn will definitely not be relevant for the specific audit objective. एक काम करते हैं, वापस से लर्न करते हैं, डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। Audit sampling means the application of audit procedures to less than 100% of the items within a population. Very important word, that is relevant under the audit. अभी हमने पढ़ा the characteristics of the population that should be there to make it relevant to the audit objective, ठीक है। तो हमने बोला it should be basically relevant, it should be relevant to the specific audit objective, then completeness, the population should be complete, and it should be reliable, that is it should be accurate, and it should be coming from a source that is reliable. तो ये हमने 3 पॉइंट पढ़े, that is the characteristics of the you can say population. अभी पॉपुलेशन से आप क्या पिक करोगे, सैंपल्स, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। अब यूनिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर से आपको 100 रुपए लेने हैं, ठीक है। 100 रुपए आपको उसके 4 इनवॉइसेस के लेने हैं। एक की वैल्यू है 20 रुपए, दूसरे की वैल्यू है 30 रुपए, चौथे की वैल्यू है 40 रुपए, और एक की वैल्यू है 10 रुपए। तो एक 10, 20, 30, 40 4 इनवॉइसेस है और अपन को 100 रुपए लेने हैं।
आप चाहो तो सैम्पलिंग यूनिट एक इनवॉइस को भी मान सकते हो, और आप चाहो वो पूरे 100 रुपए को भी मान सकते हो। तो मतलब द पॉइंट है व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। तो मैंने बोला सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, दीज आर द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। तो मैंने बोला दीज आर द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट। तो अभी अपन पुराना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। राम के 100, शाम के 200, 300 घनश्याम के, ठीक है, 300 घनश्याम के, 600 रुपए पॉपुलेशन है। अब या तो पॉपुलेशन को आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस, इनवॉइस 1 20 रुपए, 10 रुपए सॉरी, इनवॉइस 2, इनवॉइस 2 20 रुपए, इनवॉइस 3, इनवॉइस 3 30 रुपए, इनवॉइस 4 40 रुपए। ये 4 इनवॉइसेस है जो कि राम के है। फिर इनवॉइस 5 है जो कि पूरा 200 रुपए का एक ही इनवॉइस है, 200 रुपए का पूरा एक ही इनवॉइस है। और ऐसे इनवॉइस नंबर 6 है, ठीक है, जो कि 300 रुपए का पूरा एक ही इनवॉइस है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सैम्पलिंग यूनिट आपकी जो होनी चाहिए, जो सैम्पलिंग यूनिट होनी चाहिए, क्या वो आपकी एक अकाउंट बैलेंस होनी चाहिए या इनवॉइस होनी चाहिए? क्या आपकी अकाउंट बैलेंस सैम्पलिंग यूनिट होनी चाहिए या फिर इनवॉइस सैम्पलिंग यूनिट होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन अभी हमारे माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका अभी हम आंसर ढूंढते हैं, ये क्वेश्चन अभी हमारे माइंड में है। द इंडिविजुअल आइटम्स, मैंने बोला द आइटम्स दैट मेक द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट। तो मैंने बोला जो आइटम्स जो पॉपुलेशन को बनाते हैं हम उसे बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अभी हमने यही किया, हमने कस्टमर लेवल पे भी डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को, हमने इनवॉइस लेवल पे भी डिवाइड कर दिया। सो द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सो मैंने क्या बोला, द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स एंड द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अभी हमें कंक्लूजन ड्रॉन करना है सैंपल पे, ठीक है। conclusion drawn on the sample becomes the conclusion of the population। यही तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि एक ऑडिटर रिलाय कर पाए द कंक्लूजन ऑन द सैंपल टू द एंटायर पॉपुलेशन। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। एक बार ऑब्जेक्टिव को वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग इज टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद अ रीजनेबल बेसिस for the auditor to draw conclusion on the population from the sample which from for based on the sample from which it is selected। तो मैंने जिस जिस पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट किया है, मैं उस पॉपुलेशन के लिए पूरा अपना ओपिनियन बना पाऊं, मैं अपना पूरा कंक्लूजन बना पाऊं बेस्ड ऑन दैट सैंपल इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑडिट, ठीक है, और दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द सैंपल becomes the conclusion of the population from where it is drawn। ये भी हमें पता है। The auditor defines the sampling unit। अब हमें क्या बतानी है sampling unit? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। In order to obtain an efficient and effective sample to achieve the particular audit objective, to achieve the particular audit objective, तो आपको efficient and effective sample to achieve the particular audit objective। तो आपका audit objective क्या है? आपको ये देखना है कि भाई ये अपने जो पैसे है डेटर्स में, ये अपने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप सैंपल यूनिट इनवॉइस भी डिफाइन कर सकते हो, आप कस्टमर बैलेंस भी डिफाइन कर सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से व्हाट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। मैंने बोला एफिशिएंसी, मान लो आप कस्टमर बैलेंस लेवल पे भेजते हो, मान लो 200 रुपए के 50 इनवॉइस होते हैं, ठीक है, 300 रुपए के मान लो 100 इनवॉइस होते हैं, ठीक है, और 100 रुपए के हमने माने 4 इनवॉइस होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने कंफर्मेशन भेजी घनश्याम को 300 रुपए की, अब आपने बोला कि भाई साहब कंफर्म कर दे, कंफर्म कर दे, घनश्याम भाई कंफर्म कर दे। इन घनश्याम भैया तो हमारे मैच आईपीएल देख रहे हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया नहीं आपको। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जब आप करोगे तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, पूरे वो 50 इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे। तो दैट विल इम्पैक्ट योर एफिशिएंसी इन दी ऑडिट। तो आप इस सिचुएशन में डिसाइड कर सकते हो कि आप इनवॉइस लेवल पे ही आप सैंपल भेज दो, इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी। लेकिन इससे आपकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस मींस द पर्पस ऑफ द ऑडिट, ठीक है, पर्पस ऑफ दिस ऑडिट प्रोसीजर। इस ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस क्या था कि दिस कस्टमर इज नॉट फेक। मेरे को ये देखना था ये कस्टमर जेन्युइन है और मुझे इससे पैसा लेना है, मुझे इससे पैसा लेना है। तो अब मैंने क्या किया, मेरा मेरा पर्पस क्या था इस ऑडिट प्रोसीजर को करने का, दैट दिस कस्टमर इज जेन्युइन एंड आई हैव टू रिसीव मनी फॉर दिस इनवॉइस फ्रॉम दिस कस्टमर, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा द ऑडिटर डिफाइंस द सैम्पलिंग यूनिट
in order to obtain an efficient and effective samples to achieve a particular audit objective. ठीक है, to achieve the particular audit objective. अभी मुझे इससे बेसिकली अब लेकिन एक सर्कमस्टांस कंसिडर करते हैं जहां पे बेसिकली है तो 50 इनवॉइसेस, लेकिन भाई साहब कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, मतलब क्रेडिट नोट भी है, कुछ टीडीएस के एडजस्टमेंट भी है। तो आपको अब ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में पैसा कितना है। तो अभी आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल बैलेंस का अमाउंट। ठीक है, मान लो 300 रुपए घनश्याम भाई से लेने हैं अपन को, ठीक है, लेकिन 300 रुपए में 280 350 रुपए तो है इनवॉइस के जो लेने हैं, इनवॉइस की जो डिटेल है वो 350 रुपए, 20 रुपए का क्रेडिट नोट है, 20 रुपए का क्रेडिट नोट है, और 30 रुपए की मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल रखी है 30 रुपए की। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये मुझे नहीं समझ आ रही। तो अभी बेसिकली अगर मैं सिर्फ इनवॉइस लेवल पे सैम्पलिंग कर दूंगा तो शायद 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 मेरा जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है दैट वाज टू टेस्ट ₹330 इज नॉट अचीव। तो आपको ये देखना है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मींस कहीं अगर मान लो कंफर्मेशन नहीं आई तो पता चले आपको 100 सैंपल 100 इनवॉइसेस टेस्ट करने पड़ जाए। ठीक है, तो दैट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर एफिशिएंसी एंड आल्सो नॉट द इफेक्टिवनेस टू अचीव द पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो मैंने बोला अब चलते वापस से सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है। द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को बनाता है। इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स। Population can be divided into sampling units in a variety of ways. Item कस्टमर लेवल भी बना सकता हूँ, इनवॉइस लेवल भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत सारे डेट वाइज भी पॉपुलेशन बन सकती है। सो कंक्लूजन ड्रॉन ऑन सैंपल बिकम्स द कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन, ये भी हमें पता है। अब हमें बेसिकली सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट कौन सी करनी है दैट लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस वर्ड, efficient and effective sample to achieve the particular audit objective, ताकि मैं efficiently and effectively audit objective को अचीव कर पाऊं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा अगर सिर्फ मुझे पता है लेजर एकदम क्लीन है, लेजर में कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है, या तो इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वहां पे मेरे लिए अगर मैं इनवॉइस लेवल पे भी करूंगा ना सैम्पलिंग तो चल जाएगा। लेकिन एक ऐसा लेजर है जिसके अंदर इनवॉइस भी है, क्रेडिट नोट भी है, मल्टीपल एडजस्टमेंट्स है। अब ये एडजस्टमेंट्स को समझना मेरे लिए रेलेवेंट है, मेरे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। द ऑडिटर डिफाइंस द सैम्पलिंग यूनिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैम्पलिंग टू अचीव द पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो एग्जांपल हो गया, हमने ये एग्जांपल भी पूरा समझ लिया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द population because we have to draw conclusion on the population based on the conclusion of the sample. So sample must be representative. So whatever may be the approach, चाहे इनवॉइस लेवल करो चाहे आप कस्टमर बैलेंस लेवल करो, वॉट एवर मे बी द अप्रोच, चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल करो या स्टैटिस्टिकल करो, द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन ऑल्दो नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली द सेम। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है इट शुड बी मोर और लेस क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन। तो एक बार पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करते हैं फटाफट। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन चलते हैं। ऑडिट सैम्पलिंग इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स, ठीक है, टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन दैट इज रेलेवेंट टू द ऑडिट, दैट इज रेलेवेंट अंडर द ऑडिट सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। देन वी लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जहां पे हमने पढ़ा अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस मींस रेलेवेंस, देन कंप्लीटनेस एंड देन रिलायबिलिटी। 3 पॉइंट समझे हमने। फिर हम चले गए सैम्पलिंग यूनिट को समझने। हमने बोला सैम्पलिंग यूनिट भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। द टोटल ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है, द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन, जो आइटम्स पॉपुलेशन को बनाते हैं, राम श्याम घनश्याम पॉपुलेशन को बना रहे 600 करोड़ की पॉपुलेशन को, दैट इज ऑफ AR, ठीक है। So the individual items that make up the population are known as sampling units, and conclusion drawn on the sample become the conclusion of the population. The auditor defines the sampling unit in order to obtain an efficient and effective sample to achieve the particular audit objective. ये अपन ने समझ लिया। हमने बोला ये वेरी इंपॉर्टेंट था, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल। द ऑडिटर डिफाइंस द सैम्पलिंग यूनिट। मैं इस तरीके से सैम्पलिंग यूनिट डिफाइन करूंगा कि मैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल ले पाऊं टू अचीव माय ऑडिट ऑब्जेक्टिव। सो ऑडिटर डिफाइंस द सैम्पलिंग यूनिट in order to obtain an efficient and effective sample to achieve the particular audit objective. अभी sample must be representative.
तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, जो मर्जी लगाओ, कस्टमर लेवल लगाओ, इनवॉइस लेवल लगाओ, स्टैटिस्टिकल लगाओ, नॉन स्टैटिक लगाओ, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, दैट इट मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू द होल पॉपुलेशन, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी कंप्लीटली सेम। अब चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपन ने समझा ऑडिट में क्या प्रोसीजर्स होते हैं। आपने बोला दो प्रोसीजर्स होते हैं ना मन, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे पूछा गया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या होता है, तो आपने बोला दो प्रोसीजर और होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटैंडिव प्रोसीजर। फिर आपसे पूछा गया सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स में और क्या होता है, तो आपने बोला टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंडिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, सैम्पलिंग प्रोसेस लगती है सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल पे, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे नहीं लगती, एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे नहीं लगती। तो क्वेश्चन आया क्यों नहीं लगती, तो सवाल आया कि क्या सही में लगाने की जरूरत भी है, तो सैम्पलिंग रिस्क असेसमेंट में लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही एनालिटिकल में लगाने की जरूरत है, क्योंकि एनालिटिकल में तो आप 400 टन इंटू 2000 8 लाख रुपए बनने चाहिए। तो बेसिकली सैम्पलिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है, सैम्पलिंग की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। रिस्क असेसमेंट में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। अभी अंडरस्टैंडिंग सैम्पलिंग पे थोड़ी लोगे कि भाई मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ इसकी नहीं लेता हूँ, पूरी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना। तो इसलिए वहां पे सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में है, ना ही सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में है, ना ही हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में है। सो सैम्पलिंग प्रोसीजर प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं सैम्पलिंग कर रहा हूं, इसमें मैं क्या ढूंढूंगा, डीविएशन, डीविएशन। और टेस्ट ऑफ डिटेल में मैं सैम्पलिंग से क्या ढूंढूंगा, मिस स्टेटमेंट। मतलब अभी देखो, अब मिस स्टेटमेंट वापस वर्ड आ गया, अभी हमने कहीं पढ़ा था इसे, तो मैंने बोला हमने पढ़ा था ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहां पे हमने पढ़ा था मिस स्टेटमेंट रेफर्स टू दी amount, classification, presentation, or disclosure as given in the financial statement is not in accordance with the FRF presentation. मतलब the presentation that has been actually done, the way it has been measured, the way it has been classified is not in accordance with the applicable FRF. तो मिस स्टेटमेंट वो होता है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको मिलती है मिस स्टेटमेंट, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपको मिलती है डीविएशन। ठीक है, डीविएशन मींस कंट्रोल वैसे नहीं परफॉर्म हुआ। अब ये भी हमने कभी सुना था, हमने कभी सुना था, तो याद करते कब सुना था, हमने तब सुना था जब हमने बोला था टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बेसिकली अगर पर्सनल चेंज होता है तो तीन चीजें होनी चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल शुड बी, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो, व्हेन टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, तो आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ती है, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, बाय whom they were applied, and consistency with which they were applied। तो अगर मान लो whom मींस अगर कंट्रोल ओनर बंदा चेंज हो जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर माइट बी अ डिविएशन इन द कंट्रोल। तो कंट्रोल जैसे अप्लाई होना चाहिए था वैसे नहीं अप्लाई हुआ। बाय whom हमने समझ लिया, कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। इसमें हमने एग्जांपल लिया था, अगर एक महीने में बहुत ज्यादा सीजनल फ्लक्चुएशन आ जाती है, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशन आ जाती है एक महीने में, तो हो सकता है उस महीने में कंट्रोल उस तरीके से ना लगाओ जिस तरीके से लगना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया कंसिस्टेंसी। एंड हाउ दे वर अप्लाइड, आई मीन ह्यूमन एरर हो गया, एक महीने में कोई गलती हो गई, तो यू हैव टू कंसिडर, अगर कंट्रोल्स में कुछ गलती मिल जाती है तो उसको बोलते हैं डिविएशन, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कुछ गलती मिल जाती है तो उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। सो सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, to identify in test of controls to identify deviations from the expected internal controls, and in test of details to identify the misstatements of the account balances, class of transaction and disclosures। यहाँ पे disclosure शायद ऐसे लिखना भूल गया, but yeah, they should have written it। ठीक है, तो अभी सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल टू आइडेंटिफाई डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। ये हमने नीचे ऑलरेडी पॉइंट कवर कर लिया है। अब चलते हैं अपन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के ऊपर। बट एक बार उससे जाने से पहले एक बार फटाफट पॉपुलेशन समझ लेते हैं। पॉपुलेशन शुड बी अप्रोप्रिएट, पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट, पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल। Appropriateness refers to the relevance of that population to the achievement of the specific audit objective. Then comes the completeness, population should be sufficiently complete. Then comes the point of reliability, which talks about the accuracy, that the information that the population should be sufficiently accurate। तो ये हमने समझ लिया अपना। अब चलते हैं भाई साहब अपन सैम्पलिंग यूनिट भी, सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, बहुत सिंपल, द इंडिविजुअल आइटम्स इन अ पॉपुलेशन
the individual items which makes up the population. The individual items that makes up the population are known as sampling units. The population can be divided into sampling units in a variety of ways. जहाँ पे हमने समझा कस्टमर बैलेंस लेवल पे भी हो सकता है, इनवॉइस लेवल पे भी हो सकता है. अब आपको कौन सी सैम्पलिंग यूनिट चूज करना है, that depends on the efficient and effective sample methodology. So auditor defines the sampling unit in order to obtain an efficient and effective sample to achieve the particular audit objective. तो अगर मान लो कस्टमर बैलेंस पे 50 इनवॉइसेस है, तो शायद इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली फॉर एन ऑडिटर टू टेस्ट द एंटायर 50 इनवॉइसेस एंड सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. सैम्पलिंग प्रोसेस हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी यूज करते हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं डेविएशन. Deviation means three things: how it were applied, by whom it were applied, and the way and the consistency with it was applied. And test of detail is to identify misstatements of the account balance and class of transaction. अभी statistical और non statistical क्या होता है, क्या फर्क है, अब अपन ये समझने जा रहे हैं. तो हमने पहले ही समझ लिया था रैंडम सिस्टमैटिक मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. ये क्या है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नॉन स्टैटिस्टिकल हैफेजार्ड एंड ब्लॉक सैम्पलिंग. ठीक है, ये हमने समझ लिया नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में. अभी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है एक बार फटाफट समझते हैं. अब चलते हैं अपन समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? ठीक है, मैंने बोला स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल यूनिट्स. मतलब मैंने बोला every unit has a chance of selection. I'm not saying that it's an equal chance of selection, but I'm saying it has a chance of selection. So it's a random selection of the sample units and the use of probability theory to evaluate the sample results. ठीक है, तो आपने याद होगा फाउंडेशन में आपने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यू हैव टू यूज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट द सैंपल रिजल्ट. तो आपको ये देखना पड़ेगा what is the probability, what is the possibility that the results that you have drawn on the basis of sample for the entire population does not will lead to the right conclusion. That is, what is the possibility of error? क्या possibility है कि इसमें error हो जाए, including the measurement of sampling risk. तो using probability theory you will evaluate the sample result. You will evaluate whether the sample results can be applied to the entire population. So using the probability theory, you will evaluate whether the sample results can be applied to the entire population, and also the measurement of the sampling risk using the probability theory. कि कितने गलती होने के chances है. मैंने statistical approach to sampling and then the non-statistical approach to sampling. मैंने बोला statistical के दो features होते हैं. मैंने बोला स्टैटिस्टिकल में एक तो रैंडमनेस होती है. रैंडमनेस मींस कोई भी सैंपल पिक हो सकता है. एवरी सैंपल हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन. ठीक है, तो उसमें मैंने बोला वो स्टैटिस्टिकल रैंडमनेस होती है उसके अंदर. ठीक है, रैंडमनेस होती है. दूसरा मैंने बोला the use of probability theory to evaluate the sample results. तो आपको जब इवैल्यूएशन करना है सैंपल रिजल्ट्स का, जो कि अभी हम नीचे जाके पढ़ेंगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी कि बेसिकली यू कैन से जब आप इवैल्यूएट करोगे सैंपल रिजल्ट्स को, तो आप देखोगे हाउ प्रोबेबल इज that this sample result will also apply to the entire population, and then you can also measure the sampling risk using this probability theory. अभी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होगा? उसके अंदर रैंडमनेस नहीं होगी. ठीक है, उसके अंदर बायसनेस हो सकती है, उसमें जजमेंट हो सकती है. उस मतलब मान लो मैंने अपनी जजमेंट से मैंने बोला हैफेजार्ड सैम्पलिंग करनी है. हैफेजार्ड मींस मैंने अपनी मर्जी से उठाता गया. मैंने बोला पहला उठाऊंगा, दूसरा उठाऊंगा, तीसरा उठाऊंगा. ठीक है, अ सैम्पलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1 and 2. ठीक है, तो मैंने बोला रैंडम सिलेक्शन नहीं है. दूसरा यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं है टू इवैल्यूएट द सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क इज नोन एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. तो मैंने बोला एक ऐसी सैम्पलिंग अप्रोच जिसके अंदर ये दोनों चीज नहीं है, मतलब रैंडमनेस नहीं है इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, and दूसरा वो you can't use probability theory to evaluate the sample results and also measure the sampling risk, then it is not a statistical way of doing sampling, and then it's a non-statistical method. Sample size and its composition are determined on the basis of the personal experience and knowledge. मैं अपनी personal experience and knowledge के basis पे
आइटम्स को डिसाइड करूंगा, ठीक है। सैंपल साइज, सो सैंपल साइज कितने नंबर ऑफ सैंपल्स देखने हैं वो भी, एंड इट्स कंपोजिशन मतलब सैंपल्स कौन से होंगे, आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरा नॉलेज के बेसिस पे I will determine the sample size and what should be the composition of those samples. तो मैंने बोला sample size and composition are determined on the basis of the personal experience and knowledge of the auditor. फिर चलते हैं अभी benefits और limitations। मैंने बोला statistical sampling के क्या क्या फायदे हैं। मैंने बोला ये scientific method है। Scientific means statistical method are recognized by the you can say everyone, ठीक है। तो these are the scientific method। यहाँ पे आपकी objectivity compromise नहीं हो रही, आपकी जजमेंट नहीं आ रही पिक्चर में, ठीक है। सो ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन द टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। it involves some laws of probability, ठीक है, in determining the appropriate sample size in varying circumstances। तो मैंने बोला it includes the mathematical laws of probability and it's more scientific। एंड फिर हमने बोला दूसरा पॉइंट is there is no personal bias of the auditor in case of statistical sampling, there is no bias involved। मैंने बोला it's more scientific method and there is no personal bias involved। Since it's a scientific, the results of the sample can be evaluated and projected on the whole population। We can evaluate and project it to the whole population in a more reliable manner। अब यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट तो कर सकते हैं, but we are not sure that the items that has been selected judgmentally by the auditor represents the entire population or not। So can be so, but in statistical sampling we can consider that yeah, this would be the same case with the entire population। So there is no personal bias, and since it's a scientific, the results of the sample can be evaluated and projected on the whole population in a more reliable manner। तो मैंने बोला what are the benefits of having statistical sampling। मैंने बोला it's a more scientific approach, there is no judgment involved, and it helps in removing the personal bias। So there is no personal bias, that is also an advantage। And since it's a scientific method, you can project, you can evaluate and project the what is the result of the sample to the entire population in a more reliable manner। अभी अभी नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड के क्या फायदे, ये बड़ा आसान है। आपको मन करा पहला सैंपल उठाऊंगा, पांचवा उठाऊंगा, छठा नहीं उठाऊंगा, आपने टॉस किया, हेड आया है टेल आया, आपने उसके बेसिस पे सैंपल उठा लिया। तो दिस अप्रोच इज वेरी सिंपल इन ऑपरेशन, दिस अप्रोच हैज बीन इन कॉमन एप्लीकेशन। तो बहुत पहले ऐसे ही होता था जब तक ये टूल्स नहीं आया था ना, रैंडम सैम्पलिंग के एक्सेल में एमयूएस नहीं आया था। तो बेसिकली तब तक हम बेसिकली जजमेंटल सैंपल बोलते थे। तो ऐसे ही होता था। दिस हैज बीन इन कॉमन एप्लीकेशन फॉर मेनी इयर्स because of its simplicity in operation, but there are some limitations to it। There is some it's not scientific, it's not objective, it's neither objective nor scientific। There is a risk of personal bias in selection of sample items, कि आप वो वाले सैंपल सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आप आसान वाले सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो सकता है ना। एक आर्टिकल था, आर्टिकल ने क्या किया भाई साहब, आसान आसान सैंपल सेलेक्ट कर दिए और बोल दिया भाई मैंने तो टेस्टिंग कर दी, मुझे कोई गलती नहीं मिली। अब उसने टफ वाला सैंपल सेलेक्ट ही नहीं किया। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल व्हिच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। सो देयर इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड नॉर इट्स अ साइंटिफिक मेथड। देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ पर्सनल बायस, and the closeness of the qualities projected by the sample result with that of the whole population cannot be measured because we cannot relate the sample results to the entire population more reliably। We cannot do that। The closeness of the qualities projected by the sample results with that of the whole population cannot be measured because the sample has not been selected in accordance with the mathematical based statistical technique। तो अभी देखो मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू नहीं आया है, तो हो सकता है the closeness of the qualities projected by the sample results with that of the whole population cannot be measured because the sample has not been selected in accordance with mathematically based statistical techniques। तो आप बेसिकली सैंपल रिजल्ट्स को शायद पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट ना कर पाओ। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो इट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल यूनिट्स and it involves the probability theory to evaluate the sample results and then including the measurement of sampling risk।
The one which does not cover either both of the one and the two, that is random selection नहीं है उसके अंदर, या फिर it does not use the probability theory, can be termed as नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। यहाँ पे पर्सनल बायस एंड जजमेंट इन्वॉल्व होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेसिस पे सैंपल निकलते हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये वाली अप्रोच मोर साइंटिफिक है, देयर इज नो पर्सनल बायस एंड साइंटिफिक है, तो आप यू कैन इजीली extrapolate the results of the sample to the population, but it's not objective, neither scientific. There is always a risk of personal bias, and therefore when you are projecting the result of the sample to the entire population, you are facing you can't do, matlab, there will be very lot of complications in doing that because it's not a statistical method. अभी स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग कहाँ पे लगना चाहिए, तो मैंने बोला अगर मान लो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स है तो वहां पे आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगा सकते हो, या फिर मोर इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लायंस टेस्टिंग। पहली बार वर्ड आ रहा है कंप्लायंस टेस्टिंग। कंप्लायंस टेस्टिंग क्या है? इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को ही कंप्लायंस टेस्टिंग बोलते हैं, तो आप इसे कंप्लायंस मींस टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स में लगा सकते हो। You can use it in trade receivables confirmation. Then you can also consider using it in payroll checking and then vouching of invoices and petty cash vouchers. तो आप देखो statistical methods वैसे तो देखो हर चीज में ही लगा सकते हो, बट इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली एग्जांपल्स लिख के दे दिए, जैसे large number of similar items, more in case of transaction involving compliance testing, trade receivables confirmation, payroll checking, vouching of invoices and petty cash vouchers, जहाँ पे इन्होंने बोला कि आप भाई साहब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगा सकते हो। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहाँ लगा सकते हो, तो यही एग्जांपल दिखा देना, उन ट्रांजेक्शन में लगा सकते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स है, या फिर इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लायंस टेस्टिंग मींस जहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो रहा हो, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स की कंफर्मेशन, पेरोल का टेस्टिंग, दूसरा वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड पेटी कैश वाउचर्स, ठीक है। एग्जांपल भी है एक ICA के बुक में, an auditor while verifying the purchases during the year realized that the purchase transaction in that year are more than 45,000. So there are large number of similar items. Okay, then in such case statistical sampling will be highly recommended in the audit program. मैंने बोला large number of similar transactions, ट्रेड रिसीवेबल्स confirmations, payroll checking, voucher को select करना, vouching of the invoices and petty cash vouchers, and then it can be used more in case of test of controls. हमने पढ़ा था sampling can be used in either test of controls और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये भी हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जा रहे हैं। तो हमने लिमिटेशंस पढ़ा एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड एज ऑफ नाउ। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो अभी आप ट्रेडिशनली कैसे ऑडिट करते थे और अभी सैम्पलिंग में आप कैसे ऑडिट करोगे, दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। इवन बाय अंडरटेकिंग 100%, पुराने जमाने में बहुत कम ट्रांजेक्शन होती थी तो आप सोचते थे मैं 100% ही ऑडिट कर देता हूँ, मैं हर ट्रांजेक्शन का ऑडिट कर देता हूँ। सो इवन बाय अंडरटेकिंग 100% चेकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, द ऑडिटर डज नॉट डिराइव एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन। जब आप पुराने जमाने में जब बहुत कम ट्रांजेक्शन होती थी, जब आप हर एक ट्रांजेक्शन को भी चेक कर लेते थे, तब भी आपको शायद 100% सेटिस्फैक्शन नहीं आता था। तो you can't give absolute assurance, right? ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। So even by undertaking 100% checking of the transaction, the auditor does not derive the absolute satisfaction. This state of uneasiness led auditors to adopt the statistical theory of sampling. इस वजह से statistical theory of sampling आई। तो मैंने बोला सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। ट्रेडिशनली मैं 100% ट्रांजेक्शन को ऑडिट करके भी तब भी मुझे एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन नहीं आता था। So even by undertaking 100% checking of the transaction, the auditor does not derive absolute satisfaction. This state of uneasiness, मतलब इसकी वजह से ये जो परेशानी थी, इसकी वजह से हमने एक कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, दैट इज स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग, टू डिराइव द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन about the state of affairs by checking only a part of the total population of the entries. तो हमने फिर एक कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग, that can give you the comfort, the necessary satisfaction by checking only a part of the total population of the entries. तो मैंने बोला ट्रेडिशनल वर्सेस द मॉडर्न सैम्पलिंग अप्रोच। मैंने बोला पुराने जमाने में बहुत ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होती थी, तो आप शायद 100% करके भी लेकिन आपको एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो जितना सेटिस्फेक्शन आपको इतनी मेहनत करके मिलता था, तो इसके लिए हमने सोचा क्यों ना स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग को इवॉल्व किया जाए। It is a mathematical truth
ये मैथ्स भी मानती है that the sample if picked purely on a random basis. तो statistical की क्या खूबी है? It is a random selection. ठीक है, तो जब हमने definition पढ़ी, it's a random selection of the sample units and the use of probability theory to evaluate the sample results including the measurement of the sampling risk. ठीक है, तो अभी मैंने बोला इवन ये हमने समझ लिया, इट इज अ मैथमेटिकल ट्रूथ, ये मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है that the sample if picked purely on a random basis would reveal the features and characteristics of the population. ये मैथमेटिकली भी ट्रू है. the satisfaction we use to derive this satisfaction auditor used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by a sample checking provided he can put reliance on the internal controls and checks within the client's organization. तो मैंने बोला जो काम पहले आप 100% पे काम करते थे, 100% टेस्टिंग करते थे, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिल सकता है करंट इन्वायरमेंट में भी अगर आप सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करो एंड यू आर टेस्टिंग, यू कैन पुट द रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल and checks so you can put reliance on the internal controls and checks within the client's organization because they provide the reliability of the records. ठीक है, तो मैंने बोला the satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by sample checking provided he can put reliance on internal controls, है ना, because they can provide the reliability of the records. तो मैंने बोला अब बेसिकली जो आप पहले 100% टेस्टिंग करके कंफर्ट लेते थे वो कंफर्ट आपको दो चीजें करने पे भी मिल जाएगा. एक तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग कर लो, सैंपल चेकिंग कर लो. दूसरा आप कंट्रोल्स के ऊपर कंफर्ट ले लो एंड ही कैन पुट रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे प्रोवाइड द रिलायबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स because control ensure the reliability of the records, that is the accounting information, because controls ensure the reliability of the records. Another truth about the sampling technique should be noted. सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में और सत्य की बातें की गई हैं. इट कैन नेवर ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है. Another truth about the sampling technique should be noted. It can never bring complete reliability. 100% surety तो कभी भी नहीं मिल सकती. It cannot give precisely accurate results. वो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब there will always be some sampling error. ठीक है, it cannot give precisely means 100% accurate result. It is a process of estimation. It's a process of estimation. It may have some error. What error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of the individual judgment in that particular case. मैंने बोला 100% प्रिसाइज नहीं हो सकता. There will always be some sampling error. तो आपने पढ़ा होगा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट, तो वहां पे कुछ ना कुछ सैम्पलिंग एरर रहेगा वहां पर. इट कैन नेवर ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी, तो इसलिए आप कभी भी कंप्लीटली रिलायबल नहीं कर सकते ऑन दी सैम्पलिंग. It is a process of estimation. It may have some error, and what error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of the individual judgment in that particular case. ठीक है, so it's a matter of a professional judgment. Reliability of the internal control and of the internal control would ensure the reliability of the books and records. ये भी हमने ऊपर पढ़ा. The satisfaction to be he used to derive earlier by checking all the transactions can be derived by a sample checking provided he can put reliance on the internal control and checks within the client's organization because they provide the reliability of the records. ठीक है, अभी हमने थोड़ी सच्चाई समझी सैम्पलिंग के बारे में. अभी हमने समझा भाई साहब प्रिसाइज तो नहीं है, सैम्पलिंग एरर हो सकता है. यू कांट, इट कैन नेवर बी कंप्लीट रिलायबल. इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन. इट मे हैव सम एरर. ये हमने कुछ कहानी समझी अभी सैम्पलिंग की. ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल and of the books and records would agar controls are reliable and the books and records are also reliable because controls will ensure the reliability of the books and records, there will be obviously less sample. But if the reliability of the internal control is not satisfactory, and obviously if the controls are not reliable, then the books and records can't be reliable, then it would result into higher sample. It would result into higher sample. And very often we come across this term when an audit is conducted on the basis of a part checking. Part checking का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग. सो पार्ट चेकिंग हो सकता है, आपने कई बार सुना हो जब आप आर्टिकल असिस्टेंट बनोगे, ठीक है, तो आपको बेसिकली कई बार सुनने को मिल सकता है पार्ट चेक कर दे भाई, पार्ट चेक. ठीक है, मतलब सैंपल बेसिस पे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बेसिस पे भाई तू टेस्टिंग कर दे. सो
This it is said owes its origin to the statistical theory of sampling. The decision whether to use a statistical or non-statistical sampling approach is a matter of the auditor's judgment. However, sample size is not a valid criteria. Very important, very important from the MCQ, or you can say the correct incorrect question point of view. So sample size is not a valid criteria to distinguish between statistical and non-statistical approaches. आपकी सैंपल साइज 10 सैंपल आ रही हो, 20 आ रही हो, 30 आ रही हो, उसके बेसिस पे आप ये नहीं डिसाइड करोगे मैं स्टैटिस्टिकल लगाऊंगा या नॉन स्टैटिस्टिकल लगाऊंगा। हाँ, आप ये जरूर है पॉपुलेशन को देख के देख सकते हो कि भाई स्टैटिस्टिकल लगाऊंगा या नॉन स्टैटिस्टिकल लगाऊंगा। आप सैंपल साइज को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मैं स्टैटिस्टिकल लगाऊंगा या नॉन स्टैटिस्टिकल लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप पॉपुलेशन को देखो, अगर भाई पॉपुलेशन में बहुत कम आइटम्स है तो आप नॉन स्टैटिस्टिकली मींस जजमेंटली भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, वहां पे आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी लगानी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हमने पढ़ा था कि कुछ बहुत केसेस में सिर्फ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगानी पड़ती है, लाइक लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद सिमिलर आइटम्स, generally in case of test of controls, trade receivables confirmations, payroll checking, vouching of invoices and petty cash vouchers. अभी चलते हैं सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड को रिवाइज करने। मैंने बोला पहले हम शायद 100% ऑडिट कर पाते थे, ठीक है, लेकिन अभी ड्यू टू यू कैन से इवन बाय जब आप 100% टेस्टिंग करते थे तब भी आपको एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो दिस स्टेट ऑफ अनइजीनेस लीड्स द ऑडिटर टू अडॉप्ट द स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग टू डिराइव द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। अभी ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि सैंपल इफ picked purely on a random basis would reveal the features and characteristics of the population, and the satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by sample checking। मुझे वो सेम satisfaction मिल सकता है अगर मैं sample basis पे भी काम करूं, है ना, provided he can put reliance on the internal controls and checks within the client's organization because they provide the reliability of the records। तो अगर मैं test of controls पे rely कर पा रहा हूँ, है ना, कंट्रोल्स पे रिलाय कर पा रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू डू सैंपल चेकिंग, दैट वुड गिव मी द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज आई यूज्ड टू गेट इन सम ट्रेडिशनल एरा। लेकिन सैम्पलिंग की कुछ कठिन सच्चाइयां भी है, दैट इज इट कैन नॉट बी अ प्रिसाइज, it cannot give precise accurate results। There will be always be a sampling error। It can never bring complete reliability। It's a process of estimate। It may have some error, and what error is tolerable for a particular matter under examination is a matters of individual judgment। अभी हमने बोला reliability of internal control and of the books and record is good, so you will select lesser sample, and reliability of the internal control and corresponding the reliability of the records and documents is not good, then you will select higher samples। Very often we come across this term that is known as part checking। part checking का मतलब यही है statistical theory of sampling। एंड चाहे आपको statistical लेना हो या नॉन statistical sampling लेना हो, it's a matter of you can say it's a matter of professional judgment, but please do note that sample size cannot be the basis for decide the usage of the sampling, statistical sampling or a non-statistical approach to the sampling। अभी चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैम्पलिंग प्लान, ये पढ़ते हैं, बट एक काम करते हैं प्रायर टू इट, लेट्स डू इट दिस वे। लेट मी ओपन माय फोल्डर फर्स्ट, 1 सेकेंड। एक काम करते हैं, सी एंटर न्यू कोर्स आईसीआई मटेरियल को एक बार फटाफट अपन चैप्टर नंबर 4 से ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जो ये बहुत थोड़ा थियोरेटिकल था। मैंने इसको जितना पॉइंट से पढ़ा सकता था आई हैव डन दैट, बट लेट मी जस्ट ट्रेडिशनल वर्ड टाइप करते हैं, या एक काम करते हैं फटाफट चलते हैं 610 पे अभी तो। उफ, अच्छा जी आ गए भाई। नॉन स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल ये सब समझ लिया। सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड। So in most of the circumstances, the evidence available is not conclusive, and auditor always takes a calculated risk in giving this opinion। तो मैंने बोला हो सकता है कि कभी कभार एविडेंस कंक्लूसिव ना हो और आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती हो। जब आप 100% चेकिंग करते थे पुराने जमानों में, तब भी ऑडिटर डज नॉट डिराइव एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन। दिस स्टेट ऑफ अनइजीनेस लेड Pregrament auditors to adopt the statistical theory of sampling to derive the necessary satisfaction about the state of the affairs by checking only a part of the total population। Auditors realize that they can derive good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in the auditing process। It is a mathematical truth that the sample if picked purely on a random basis would reveal the features and characteristics of the population।
By adopting the sampling technique, the auditor only checks a part of the whole mass of the transaction. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by a sample checking, provided he can put reliance on the internal control and checks within the client's organization because they provide the reliability of the records. ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट. So sampling is used as a part of test of control. Sampling को हम use करते हैं as part of the test of control. We also use that part of the test of details. Auditor will check few internal controls and their operating effectiveness. Based on the conclusion, he can design the sample size for the test of details. If the internal control is satisfactory in its design and implementation, a much sample size would result in the auditor's satisfaction कि हाँ भाई, I am okay with the samples. But अगर control सही नहीं है तो he will have to enhance the number of samples. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा. पार्ट चेकिंग पढ़ा, फिर हमने दी फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैम्पलिंग प्लान. ये अभी हमें कवर अप करना है, करेक्ट. तो एक हमने जो पॉइंट पढ़ा था, लेट मी जस्ट रिवाइज ये वाला पॉइंट, करेक्ट. अनदर ट्रुथ अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक शुड बी नोटेड, करेक्ट. तो इस पॉइंट को एक बार फटाफट चलते हैं. Another truth about the sampling technique should be noted. It can never bring complete reliability. It cannot give precisely accurate result. It's a process of estimation. It may have some error. What error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of the individual's judgment in that particular case. तो ये हमने पढ़ा. तो another truth about the sampling technique is it can never bring complete reliability. It cannot give precisely the accurate results, and it's a process of element measurement, estimation, and it may have some error. ठीक है, ये हमने समझ लिया. अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पलिंग प्लान. क्या सैंपल करूं, ठीक है, कितना सैंपल करूं, ठीक है, एंड व्हाट शुड आई, बेसिकली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपलिंग साइज. ठीक है, अगर एंटिटी बड़ी है तो सैंपल ज्यादा होंगे. तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट. व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. अगर कंट्रोल अच्छे तो सैंपल कम होंगे, कंट्रोल बेकार है तो सैंपल ज्यादा होंगे. ठीक है, व्हाट इज द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. बुक्स एंड रिकॉर्ड अगर सही से मेंटेन्ड है तो सैंपल कम होंगे. अगर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बेकार तरीके से मेंटेन्ड है तो सैंपल ज्यादा होंगे. अगर टॉलरेबल एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल डेविएशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब क्या है कि दिस इज द लेवल ऑफ एरर which I can you can say which I can manage and consider. ठीक है, तो जनरली टॉलरेबल एरर का लेवल जो होता है ना, दैट इज बिलो द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और इक्विवेलेंट टू द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. मतलब टॉलरेबल एरर कैन नॉट बी मोर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी मोर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. तो टॉलरेबल एरर कैन नॉट बी मोर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. तो आप जितना टॉलरेट कर सकते हो एरर, वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल तक का हो सकता है. तो व्हाट इज द टॉलरेबल एरर एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. अगर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए भाई साहब, अगर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए तो आप सैंपल ज्यादा करोगे. अगर आपको कॉन्फिडेंस ओके चाहिए तो आप सैंपल कम करोगे. तो मैंने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपलिंग प्लान. तो मैंने बोला तीन जो फैक्टर्स है वो एंटिटी के फैक्टर्स है, और दो जो फैक्टर्स है वो ऑडिटर के फैक्टर है. ठीक है, तीन जो फैक्टर है वो एंटिटी के फैक्टर्स है. एंटिटी का क्या फैक्टर है, कितनी बड़ी साइज उतने ज्यादा सैंपल. इंटरनल कंट्रोल जितना बढ़िया उतने कम सैंपल, जितना बेकार उतने ज्यादा सैंपल. व्हाट इज द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड. अगर अच्छी बुक्स है तो कम सैंपल, अगर बेकार बुक्स है तो ज्यादा सैंपल. अब फिर मैंने बोला दो ऑडिटर के पॉइंट्स. मैंने बोला व्हाट इज द ऑडिटर्स टॉलरेबल रेंज ऑफ एरर्स, व्हाट इज द डिजायर्ड degree of the confidence for the auditor. So the factors that should be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling plan are the following. 3 पॉइंट क्लाइंट के, 2 पॉइंट हमारे. क्लाइंट के क्या 3 पॉइंट है. मैंने बोला क्लाइंट की साइज बड़ी है तो सैंपल ज्यादा होंगे, क्लाइंट का कंट्रोल अच्छा है तो सैंपल कम होंगे, और क्लाइंट का रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स अगर सही से मेंटेन्ड है तो सैंपल कम होंगे. तो द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड. फिर मैंने बोला दो मेरी चीजें. मैंने बोला व्हाट इज द टॉलरेबल एरर एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पढ़ लिया, नॉन स्टैटिस्टिकल पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पलिंग प्लान पढ़ लिया, फिर ट्रेडिशनल वर्सेस द सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया. ट्रेडिशनल में जब हम 100% देते थे तब भी हमें एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, तो स्टैटिस्टिकल
मे बी अगर हम बेसिकली सैम्पलिंग करें, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करें और कंट्रोल्स को हम बेसिकली देख ले विच प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी ऑन द रिकॉर्ड, तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। तो सैम्पलिंग टेक्निक बुरी नहीं है, बट हाँ कुछ बहुत दिक्कतें हैं इसके साथ भी। it is not subject, it cannot be measured precisely, it's a process of estimation, it may have some error। तो ये एक छोटा सा एक डिस्कशन है दैट इज कवर्ड इन दी स्टडी मैट। अब चलते हैं अपन appropriateness of the sampling approaches, advantage of statistical sampling, ये चलते हैं बस। अब अपना मेन स्टैंडर्ड इसके बाद शुरू होगा। अभी तो मेन स्टैंडर्ड में हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम बस ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ रहे हैं, दैट इज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो अभी चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पे, जहाँ पे हमने समझा दी अमाउंट ऑफ टेस्टिंग दैट इज सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एरिया। मैंने बोला सबसे पहले फायदा क्या है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का, तो भाई साहब की अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऐसा नहीं होगा सैंपल उतने प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब अगर आपके 10 सैंपल ऐड हुए तो 5 सैंपल नए 10 पॉपुलेशन में आइटम्स ऐड हुए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 सैंपल्स पिकअप हो जाएंगे। सो द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एरिया, दिस बिकॉज स्टैटिस्टिकली हमने डिटरमाइन किया है, ठीक है। इस सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर साइंटिफिक, ठीक है, तो मोर ऑब्जेक्टिव वे ऑफ सेलेक्टिंग दी सैंपल्स है। इट प्रोवाइड्स इट दिस मेथड्स प्रोवाइड अ मींस ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रोसीजर। तो मैंने बोला व्हाट वुड बी द मिनिमम सैंपलिंग साइज बेस्ड ऑन द सैंपलिंग टेबल, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम सैंपलिंग साइज। एक काम करते हैं, जो हमने ऊपर अभी बेनिफिट्स पढ़े थे, तो मैंने बोला हमने क्या क्या पढ़ा था, scientific approach, more objective approach, not subject to the personal bias, so same points आएंगे, but it's a discussion that is given in a study mat। So the appropriateness of sampling approaches, what is the advantages of statistical sampling is it's a more objective and more defensible approach, the method provides a means of estimating the minimum sample size associated with a specified risk and procedure। एंड मैंने बोला अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो इतने सैंपल्स नहीं बढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्स। Then it provides a means for deriving a calculated risk and corresponding precision, that is sampling error. That is the probable difference in the result due to the use of a sample in lieu of the examining all the records in the group using the same audit procedure. It may provide a better description of a large mass of data. तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे larger population है वहाँ पे it's better to use statistical sampling than a complete examination of all the data, since non-sampling errors such as processing and clerical mistakes are not as large. It is widely accepted way of sampling as it is a more scientific without personal bias, and the result of the sample can be evaluated and projected in a more reliable way. The same points here: objective, scientific, no personal bias. The results of the sample can be projected, okay, can be evaluated and projected in a more reliable way. It provides a better description of the large mass of data, तो large number of transaction को easily तरीके से कर सकते हैं, provide a better description of a large amount of data than a complete examination of all the data. Since non-sampling errors such as processing and clerical mistakes are not as large, so it provides us a better description of the large mass of data. It provides us a means for taking the calculated risk, मतलब sampling risk is a calculate, अगर आप statistical method के बेसिस पे samples draw out कर रहे हो तो जो आप risk ले रहे हो that is a calculated risk, because इसमें जो chances है ऊपर नीचे होने के that is only a sampling error, ठीक है, and the corresponding precision, ठीक है। The method provides a means of estimating the minimum sample size, और आपके सैंपल्स उतने नहीं बढ़ेंगे जितने आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये मेथड जो कंसिडर करता है स्टैटिस्टिकल मेथड, ये नहीं होगा कि आपकी पॉपुलेशन अगर 10% से बढ़ी है तो आपकी सैंपल साइज 10% से बढ़ जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू दी सैम्पलिंग। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि मान लो 100 करोड़ अगर 200 करोड़ बन गए तो जो 10 सैंपल थे वो 20 सैंपल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में। जितना ज्यादा बड़ी होती जाती है पॉपुलेशन उतने कम सैंपल, मतलब उतने प्रोपोर्शन में कम सैंपल हो जाते हैं। मतलब मान लो 100 से 200 हुआ तो मान लो 10 से 20 हुए सैंपल, लेकिन अगर 200 से अब 300 होगा तो 20 से अब 30 नहीं होंगे सैंपल, 20 से अब वो 25 ही होंगे। तो इट डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन बिकॉज इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो हमने बात करी क्या क्या फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव, no personal bias, scientific without any personal bias, better
for large mass of data, helps in taking the calculated risk. It provides a method of estimating the minimum sample size. These samples are more objective, and the size of the samples does not increase in proportion to the population. ठीक है, in proportion to the population. ठीक है. What is the limitation? Limitation क्या है? The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary, या तो another approach जरूरी है, मतलब टेस्टिंग ऑल दी 100% आइटम्स. तो ये तब जरूरी था जब हमने 3 सिचुएशन पढ़ी थी. क्या 3 सिचुएशन पढ़ी थी? जब ऑडिट एविडेंस का चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था या तो वो एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जिसमें वेरी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स है, तो मैंने बोला वहां पे मैं 100% टेस्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ. या फिर मैंने बोला वो सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया है एंड अदर ऑडिट मेजर्स have not provided me cannot provide me the sufficient and appropriate audit evidence. तो मैंने बोला इसके लिए मुझे 100% टेस्टिंग करनी पड़ेगी. या फिर मैंने बोला वो एक्सेल में मुझे एक फॉर्मूला लगाने से I would be able to test the entire 100%. The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary. तो इन 3 circumstances में हमने पढ़ा था कि हमें 100% टेस्टिंग करनी पड़ती है और will provide satisfactory information in less time or with less effort. तो आप एक एक्सेल में एक फॉर्मूला लगा के पूरी 100% पॉपुलेशन पे कंफर्ट ले सकते हो rather than knowing the samples. For instance, when exact accuracy is required or in case of legal requirement, तो हो सकता है लॉ बोले कि भाई आपको 100% टेस्टिंग करनी है, तो ऐसा कुछ हो सकता है. तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. अब एक काम करते हैं, फटाफट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन राइट अवे स्टार्ट विद दिस मेन टॉपिक ऑफ दिस सैंपल ऐसे 5:30. हाँ जी गाइस, चलते हैं पवन सबसे मेन टॉपिक पे, दैट इज सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड देन सैंपल सिलेक्शन. तो सबसे पहले सैंपल को डिजाइन करते वक्त आपको क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है, सैंपल साइज को सैंपल साइज को सोचते वक्त क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, एंड व्हेन सेलेक्टिंग एन आइटम फॉर टेस्टिंग आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है. तो ये ऐसे 5:30 का डायरेक्ट बेयर एक्सट्रैक्ट है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ. व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल, जब आप ऑडिट सैंपल को सोच रहे हो कि इस पे सैंपलिंग करी जाए, द ऑडिटर शैल कंसिडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. तो मेरा पर्पस क्या है, एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन अभी हमने पढ़े, वेदर इट्स अप्रोप्रिएट, वेदर इट्स रिलायबल, वेदर इट्स कंप्लीट, करेक्ट. So we have to consider the purpose of the audit procedure and the characteristics of the sample from which samples will be drawn. तो जब मैं audit procedures को design कर रहा हूँ, ठीक है, so when designing an audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedure and the characteristics of the population. तो मुझे 2 चीजें consider करनी है. What is the purpose of the audit procedure? What is the purpose of the audit procedure? And what is the characteristics of the population from which the sample will be drawn. ठीक है, तो मैंने बोला I have to consider what is the purpose of the audit procedure. ठीक है, अब एक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से. सो इन अ टेस्ट ऑफ डिटेल रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. तो मेरा पर्पस है एग्जिस्टेंस चेक करना अकाउंट रिसीवेबल की, सच एज कंफर्मेशंस, पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर बिफोर द कंफर्मेशन डेट. तो मतलब कंफर्मेशन डेट से पहले उसने पेमेंट कर दी थी, बट रिसीव्ड शॉर्टली आफ्टर दैट डेट बाय द क्लाइंट आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मिसस्टेटमेंट. तो इसको आप गलती नहीं मान सकते. बेसिकली हुआ गया, उसने यूएस से पैसे ट्रांसफर किए 29 मार्च को, मेरे यहाँ पे इंडिया के बैंक अकाउंट में पहुंचे 1 अप्रैल 2024 को. तो इसको हम बोलते हैं फंड्स इन ट्रांजिट. तो क्या अब मान लो जो कंफर्मेशन में बैलेंस आया वो आया 100 रुपए, जो मेरी बुक्स में था वो था 110 रुपए. ठीक है, अभी देर इज अ गैप ऑफ 10 रुपीज. इसका कारण क्या है, बेसिकली उसने 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे 29 तारीख को, लेकिन अपने यहाँ पे पहुंचे 1 अप्रैल को. ठीक है, तो बेसिकली इसको हम मिसस्टेटमेंट नहीं बोल सकते. ठीक है, सो अभी आपको ये एग्जांपल मैंने किस लिए समझाया, तो मैंने बोला पहले आपको पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर समझना है कि आपका पर्पस क्या है. सो स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड by way by way of combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose. तो मैंने बोला आपको सैंपल्स को इस तरीके से डिजाइन करना है, आपको सैम्पलिंग को इस तरीके से डिजाइन करना है. सो इन ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है. सो सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन, देन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके यू हैव टू analyze the nature and cause of deviation
and then you need to project the misstatement and then you need to evaluate the results of the audit. ठीक है, तो जब हम डिजाइन कर रहे हैं, when designing an audit sample, ठीक है, तो हमें क्या समझना है, what is the purpose of the audit procedure, purpose of the audit procedure and the characteristics of the population from which the sample has been drawn. So when designing an audit sample, the auditor's consideration includes the specific purpose to be achieved and the combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose. मेरा पर्पस क्या है, मेरे को एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को चेक करना है. एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैंने बोला अगर सब्सिक्वेंटली पैसा आया है तो भी मैं चेक कर सकता हूँ, तो भी मुझे ये पता चल जाएगा दैट दिस अकाउंट्स रिसीवेबल वाज एग्जिस्टिंग, ठीक है, वाज एग्जिस्टिंग, ठीक है. लेकिन इससे मुझे कट ऑफ के बारे में नहीं पता चलेगा कि क्या वो 31 मार्च को ही डेटर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है डेटर वाज एग्जिस्टिंग, ठीक है. सो व्हाट इज द ऑडिटर्स कंसिडर, सो व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल, जब आप डिजाइन कर रहे हो an audit sample, the auditor's consideration includes the specific purpose to be achieved and the combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose. So what is my purpose? My purpose is basically to obtain an evidence about the existence of an accounts receivable, right? So what are the possible ways in which I can perform this procedure? So if I check the subsequent collection of that receivable, then I can get the then I can get the confirmation, then I can get the, basically you can say the evidence that the receivable was existing, या फिर मैं कंफर्मेशन मंगवा सकता हूँ, ठीक है. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट इज लाइकली टू बेस्ट अचीव दैट पर्पस. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस? सो जब आप डिजाइन कर रहे हो एक ऑडिट सैंपल को, द ऑडिटर शैल कंसिडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. Then the second point is consideration of the nature of audit evidence sought and the possible deviation or misstatement conditions or other characteristics relating to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation or misstatement and what population to use for sampling. कुछ नहीं समझ आया. So you have to give consideration. So when designing an audit sample, you have to give consideration to the nature of the audit evidence sought. So what is the nature of audit evidence? Nature और source, हमने दो टाइप की चीजें समझी थी. हमने बोला हमें क्या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में चाहिए, क्या हमें विजुअल फॉर्म में चाहिए, या फिर ओरल फॉर्म में चाहिए, ठीक है. तो कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस सॉट and the possible deviation or misstatement conditions or other characteristics relating to that audit evidence. तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो कंफर्मेशन मेरे पास आएगी वो बैलेंस मैच नहीं खाएगी, तो मतलब मिसस्टेटमेंट की क्या कंडीशन है. डिविएशन मींस क्या होता है, कस्टमर की रिसिप्ट्स, जो कस्टमर से पैसा आया होता है उसको हम इनवॉइसेस से मैप करते हैं. तो मैंने बोला क्या रिस्क है कि जो कस्टमर ने एडवाइस भेजी थी जिसके बेसिस पे नॉकिंग ऑफ इनवॉइसेस होनी थी वो सही से नहीं हुई है, तो दैट इज अ डिविएशन, ठीक है. व्हाट इज द, सो यू हैव टू कंसिडर द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस सॉट and possible deviation or misstatement conditions or other characteristics relating to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation or misstatement and what population to use for sampling. तो आपको इससे समझ आएगा कि क्या deviation है या क्या misstatement है and what population you have to use for sampling, for the purpose of sampling. तो basically you have to consider the nature of the audit evidence which you are seeking, ठीक है, which you are seeking. क्या आपको confirmation चाहिए, क्या आपको बेसिकली सब्सिक्वेंट रिसिप्ट की डिटेल चाहिए. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस दैट इज बीइंग sought? The first one was basically you have to understand what is the purpose, what is the purpose to be achieved and what are the combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose, ठीक है. So what is the purpose that you want to achieve? Then you need to think about the audit evidences that you want to seek. So the first point was basically around the specific purpose to be achieved. तो एक काम करते हैं, what is the purpose that you want to achieve? What is the audit evidence that you want to seek? The first and second point are pretty much clear. This will help you in designing the audit sample. तो आपका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है. What is the specific purpose to be achieved and what are the procedures that you can apply to achieve that purpose?